So today I'm gonna discuss this array reference in arithmetic, that is 1D and 2D array. So this thing you all must have studied in your algorithm also, the algorithm or data structure. I say algorithm, that how to apply this data structure array both 1D and 2D. Okay, so today I'm gonna tell you that how to convert any code, okay, any code for this array 1D or 2D into 3 address code. This is very important topic, as in the previous sections we already know how to generate the intermediate code. So because this is important, because this is linked, okay, this is linked with coming next, in your unit 5th, when you comes to the code optimization. So there the blocks and flow graphs, okay, that depend on this topic, on this now, how to generate the code for this array, okay, with the size. Like this is the example, this is an array given with the size. So this is very important, okay, because this is linked topic, okay. And if you don't know how to generate this code, so it will create problem for you during when you study the code optimization. So I'll start, okay. So this is a before starting, as usual, I am giving you the introduction of for this array, okay. So if for example it is given in teaser a55 is the size of the, or you can say these are the element, okay. So this is the normal things, okay, that is base address. base address क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम मैंने यहाँ पे 1000 है, बस बेस एड्रेस बेसिकली मेमोरी जनरेटेड होता है, वट एवर जो भी आपका कंप्यूटर, जो भी आप वैल्यू कुछ भी देते हो, तो दैट द मेमोरी जो है कंप्यूटर जनरेटेड मेमोरी ये है बेस एड्रेस, इट इज़ मेमोरी जनरेटेड, ओके. सो बट फॉर नाउ फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन आई एज्यूम हेयर दैट इज 1000, 1004, 1008, 1012, 1016. So because of this, the size, that is the width, is 4 byte. This is very important, okay. Now lower bound क्या होता है आपका, that is the lower bound. In exam they can give you these two things in any way, like they can give you here any address with any width, okay, and any lower bound 11, 12, 13, 14, anything they can give, but I have taken here 0. This is the actual actual address in memory. These are the element and address with respect to the array, fine. So if for example if I need to find here, for example, that is on this, okay, on this address, what will be the actual memory address. So there is a formula which is very known to, means previously also we have studied, that is address of I here, that is I have taken the value 3, okay. So the 3 I want to know the address, fine. So that is base address formula हमारा क्या रहता है, that is a simple formula only, nothing here so much complicated which makes you okay ki how these things are come. So there is nothing hard, you can write here 4, okay, and can find out the address for this. So I just applied here base address into, that is w is for width, into I minus, that is lower bound. So by after applying all this thing, I found here 1012, that is the address 1012, okay. So this is the formula. Now why I am saying that at the during core optimization it's very important, because you know कि arrays like array, if you for example like block और जब हम फ्लो ग्राफ बनाते हैं, तो देयर द चांसेस कि जो भी हमें एल्गोरिथम हमें कोई दे दी जा सकते हैं, लाइक सर्चिंग की कोई भी एल्गोरिथम दे सकते हैं, दे कैन गिव यू क्विक सॉर्ट एंड बबल कोई भी, एंड देन दे सेट कि कन्वर्ट इनटू द 3 एड्रेस कोड एंड देन ड्रॉ द फ्लो ग्राफ फॉर दिस, okay. तो इन दिस टाइप, so here this thing how to make, okay, how to make code for this to convert into the 3 address code. Previously in my previous videos I told you for the switch procedure functions के केस में हम 3 address को कैसे convert करते हैं when they, and both the things function calling भी, procedure calling जो रहता है हमारा, और statement, switch statement, okay, case statement we can say. तो these 3 things are very important to know कि हम इनको कैसे 3 address code में convert करते हैं. तो हम start with the
नॉर्मल एग्जाम्पल, मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया, इंट आई इंटीजर 8 10 दैट इज साइज आई इक्वल टू 1, वाइल एक लूप लगाया, वाइल लूप लेस देन 10, जब तक इसकी वैल्यू रहेगी तो इट विल मूव। जैसे ये मेरा 11 हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट जैसे ही 11 होगा सो यहाँ पर लूप क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेट हो जाएगा एंड इट कम्स आउट। ओके, सो हेयर आई इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ फन थिंग, जब हम कोड बनाते हैं, प्रीवियसली ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हम डिक्लेरेशन को यहाँ पर नहीं लिखते हैं। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ लाइन, ओके, रफली आप जब कोड बनाने से पहले, ओके, एंड देन आई इज इक्वल्स टू 1। तो जो ये तो डिक्लेरेशन है तो मेन चीज़ पे आता है आई इज इक्वल्स टू 1 इफ़ आई इज लेस देन इक्वल्स टू लाइक गो टू 4। सी दिस इज़ द कंप्लीट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। बट सी जब भी हम कोई लूप पे वर्क करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो ट्रू होती है कंडीशन या वो फॉल्स होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मीन्स दिस पार्ट आप लोग को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है बिकॉज दिस थिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कमिंग यूनिट्स, दैट्स वाई। ओके, सो दैट इज़ गो टू 4। तो हेयर आई डोंट नो कि वेयर आई हैव टू गो। ओके, इफ़ आई इज़ लेस देन, ओके, इफ़ आई इज़ लेस देन 10 गो टू वेयर। तो देर आर टू थिंग्स, एक होगा कि अगर एक सिचुएशन ट्रू होती है तो व्हाट आई एम गोना डू, एक होगी मेरी स्टॉप वाली सिचुएशन कि इफ़ इट इज़ फॉल वेयर आई हैव टू गो। फाइन, सो दिस ये चीज़ आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मीन्स आइदर बिकॉज हम ट्रू वाले सिचुएशन है 4 देन गो टू 8 का क्या है यहाँ पे, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 2 टाइम्स गो टू आई हैव रिटन, बिकॉज एक टाइम तो जब सिचुएशन ट्रू होगी कौन सी लाइन पर जाएगा वो हमें फिल करना होगा, और एक बार जब सिचुएशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो विच लाइन, फॉर एग्जाम्पल जब ये इंक्रीमेंट होने के बाद 11 हो जाएगा तो वट विल डू 11, ओके, when तो the situation become false, तो when that time will follow this and will stop, fine। so t I is to 4 into I। अब ये मैंने कैसे निकाला है, सी जब भी हमें कोई एड्रेस दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस a I इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं I इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ और उसको एक टेम्पररी मैंने वेरिएबल लिया है t I में, मैं उसको पुट ऑन करूँगी एंड देन मैं a को पास कराऊंगी उस वैल्यू के लिए, ठीक है। सो हाउ आई एम डूइंग दिस, आई जस्ट वॉट आई डिड कि मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया है, बेस एड्रेस मैंने मेमोरी जनरेटर लिखा है तो आई एम नॉट टेकिंग हेयर बेस एड्रेस w, अभी यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन हेयर दैट इज़ 4। इफ इट इज़ गिवन तो यू कैन टेक दैट ओनली, I minus 0, both the things I just assume, these both the things, if it is given in your exam that's fine, but if it is not given so you can do like this, okay, you can assume। so by after applying 4 here and I minus 0, that is when I multiply w into I, so it's w, when I multiply with 0 it becomes 0 only, okay, and 0 को add करोगे तो it become 4i। तो from here I found this, क्या ये मैंने I की वैल्यू को t ये जो मैंने द वैल्यूज़ मैंने यहाँ से गेट किया है, दैट इज़ t1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू आई। नाउ अब ए को अब मैं पास कराऊंगी, दैट इज़ ए में मैंने क्या वैल्यू डाली है, दैट इज़ 4 इंटू आई, ये वाली यहाँ पर रख ली, इज इक्वल्स टू 0। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हम कोड ऑप्टिमाइज तो सो मेनी टाइम्स हमें एड्रेस हमें दिया होता है, तो हाउ यू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आई, टी आई इज इक्वल्स टू 4 इंटू आई, देन ए टी आई को मैंने पास कराया, सॉरी बिफोर दैट आई स्पीक t1, it's not ti, okay, it's ti into 4 into I, and okay, whatever with the value of t1 t2 like this you can do, fine। so I is equals to I plus 1 and then go to 2। after doing this again I'll go to this statement, then if it is true then I'm again comes here, again increment the value, again find the address, and in this way this scenario work, okay। so similarly if we talk about the 2D array, so similarly 2D array also this works similar in the similar form, the things are means here we have two things, one is the row and next is the column measure, okay। so if we this, for example this is one given like 3 4, what does it mean, 3 represent this row and 4 represent this column, 1 2 3 4 or 0 1 2 3 4 0 1 2 like this, okay। so अगर हम रो मेज़र की बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, लाइक दिस 8 6 3 2, ओके, 4 5 9 1 6 3 2 4, और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम वाइज रहता है, देयर आर 4 कॉलम्स, ओके, एंड 3 रोज
एंड 4 कॉलम्स, तो 8 4 6 6 5 लाइक दिस, ये कॉलम के लिए रहता है, ठीक है। सो इन दैट ऑल्सो सिमिलरली इसके लिए भी एग्जाम्पल वही है हमारा फॉर्मूला, बिकॉज इसमें भी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एरे जो भी हमें साइज दिया होगा उसका एड्रेस निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला। फॉर्मूला इज AIJ, दिस इज बेस एड्रेस प्लस W इंटू N इंटू I माइनस LR, दैट इज दिस इज द LR फॉर दिस रो एंड LC फॉर द लोअर बाउंड, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस, क्या है, जब हम इन दोनों फॉर्मूलोज को अप्लाई कर रहे हैं कि when we are रो मेजर के साथ जब हम करेंगे, सो व्हाट विल यूज द कॉलम साइज, ओके, विल डिक्लेयर द कॉलम साइज विद द LR। जब हम कॉलम क्लिक करेंगे तो विल डिक्लेयर हेयर M इंटू दैट इज J माइनस LC, तो दिस इज ओनली द डिफरेंस। वन थिंग एक और है जो इसमें समझने वाली है, यू कैन सी गाइस कि जब मैंने यहाँ पे IJ कॉलम अप्लाई किया, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम फाइंडिंग वैल्यू फॉर I2 मीन्स हेयर I की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 है, और फॉर दिस 9th एलिमेंट। सो यू विल सी वन थिंग कि जब आप इसको रो मेजर कॉलम मेजर अप्लाई करोगे तो दैट देयर कैन बी अ डिफरेंस जो आपका फाइनल आंसर, होप यू कैन सी हियर दिस इज 10024 आ रहा है, एंड सिमिलरली जब मैंने कॉलम अप्लाई किया तो इट इज़ 10028 आ रहा है। वाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि जब हम रो मेजर करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग द रो मेजर, तो सी यू कैन सी द डिफरेंस 0 1 2 3 4 5 6, this is coming on the 6th position, fine. Now we'll do column wise 0 1 2 3 4 5 6 and 7, so you can understand there's a difference of one digit. Why I'm doing row wise 1 2 3 4 5 6 7, ओके, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, ओके। तो आप 0 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, तो एक उसका डिफरेंस है, दैट्स वाई ये आपका जो 24 28 में डिफरेंस आ रहा है। बट अगर आप इस फाइनल के लिए फाइंड आउट करोगे, वे एड्रेस निकालोगे, यू विल फाइंड द ओनली, मतलब मीन सिंगल आपकी सही वैल्यू आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ आपका 2D के लिए। अब सिमिलरली हम इसमें भी वही अप्लाई कर रहे हैं, सेम कोड मैंने यहाँ पर लिया है, बस यहाँ वहाँ पर एक ही था हमारा 1D है, तो यहाँ पे मेरा 2D है, तो आई हैव टेकन द रो एंड कॉलम के लिए मैंने साइज़ लिया है, सेम बिल्कुल मैंने अप्लाई किया है। नाउ अब इसमें भी जो आपका कोड है I इज टू 1, द बोथ द थिंग्स गो टू के लिए एक कंडीशन अप्लाई करूँगी, गो टू जब फॉल्स हो जाएगा एक कंडीशन अप्लाई करूँगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर स्टॉप, ओके। सो नेक्स्ट, अब इनके लिए वैल्यू कैसे निकालनी है, आप कोई भी रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, एनी मेथड यू कैन यूज़ गाय, एंड सिमिलर वे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बेस एड्रेस मेमोरी जनरेटेड, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस, और आप कंसिडर भी कर लो तो यू मीन्स इट्स लाइक कि डो नॉट कंसिडर दिस, तो आई एम गेटिंग हेयर, आई एम अप्लाइंग हेयर 10, दैट इज़ 10, मैंने यहाँ पे 10 अप्लाई किया, तो दैट मीन्स इट इज़ रो वाइज आई एम यूजिंग द फॉर्मूला, ओके। तो मैंने कॉलम रो दोनों सेम है, तो अगर आप यहाँ पर 10 को करो, यहाँ पर 10 को करो, इट डजेंट अफेक्ट, ठीक है। सो पूरा सॉल्व करके मुझे क्या मिल रहा है 44 इंटू आई। सो सिमिलरली अब आई जे के लिए मैंने क्या किया 44 इंटू आई, ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है जिसको मैंने T1 में डाला है। नाउ अब ए को पास करा रही हूँ T1 के लिए, सो ए T1 इज इक्वल्स टू 1 जो यहाँ पर था, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, सिमिलरली गो टू 2, अगर ये 2 होगी फिर से हम इसको कॉल करेंगे, सही है तो अगेन हम यहाँ पे आएंगे, तो आफ्टर यू कैन सी मेमोरी, अगर हमें स्पेस पता है तो यू विल सी एवरी टाइम व्हेन एवर आई इंक्रीमेंट, तो यू गेट द एड्रेस ऑफ एवरी एलिमेंट जो भी उसमें साइज में प्रेजेंट है। सो इन दिस वे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको कैसे निकालना है, ओके। सो in this way we can find the 3 address code for a when in case of array both 2D and the 1D.